ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ میرے محترم بھائیوں، حالات کی مناسبت سے آج کا موضوع رکھا گیا ہے ہماری دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ ہدایت اللہ عمری حافظ اللہ موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ AIGC کے پلیٹ فارم سے شیخ محترم کے کئی دروس ہو چکے ہیں۔ شیخ محترم کو دعوت دینے سے پہلے تمام ساتھیوں سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنا آڈیو اور ویڈیو بند رکھے اور توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو آخر میں سوال و جواب کے لیے بھی وقت دیا جائے گا۔ تو بلا تاخیر اب میں شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آیا اور اپنا موضوع ہماری دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوتی اس موضوع پر خطاب فرمایا۔ فلیتفضل شیخ ہدایت اللہ عمری حافظ اللہ مشکورا و معجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قابل احترام میرے اسلامی بھائیوں، معزز حاضرین اور حاضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ AIGC کی ٹیم کو ذریعہ بنا کر ہمیں اس طور پر منتخب کیا اور چنا کہ ہم کچھ دیر دین کی باتیں سن سکیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں۔ آج کے اس درس میں میرا عنوان جیسا کہ آپ نے سنا ہے، آخر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس عنوان پر میں آپ کے سامنے 4 باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ ہماری دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کے 4 اسباب ہیں۔ یہ 4 اسباب آپ کے سامنے بإذن اللہ اس عنوان کے تحت رکھوں گا۔ ایک بندہ مومن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہیں پر اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کہاں کمی بیشی ہو رہی ہے، کہاں نقص ہو رہا ہے، اس پر غور کرے اور اس نقص کو، اس کمی کو دور کر کے عبادت کا مکمل حق اس کو دینے کی کوشش کرے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں چند اسباب کی وجہ سے، چند رکاوٹوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دعا قبول ہونے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں، جو موانع ہیں ان موانع سے رک جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے حتی المقدور جو شرطیں رکھی گئی ہیں ان شرطوں پر پورا کرنے کی کوشش کرے۔
मोहतरम सामिईन और सामियात, हमारी दुआ कबूल नहीं होने की सबसे पहली वजह यह है कि हम दुआएं तो करते हैं लेकिन इस बात पर गौर और फिक्र नहीं करते कि हमारी कमाई, हमारा खाना हलाल है कि नहीं है। दुआ कबूल नहीं होने में एक बहुत बड़ी रुकावट हराम कमाई है, हराम का खाना है, हराम का पीना है, हराम लेन देन है। ये हराम खोरी हमारी दुआओं के कबूल होने में बहुत बड़ी रुकावट है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी कमाइयों पर गौर करें, हमारे लेन देन पर गौर करें कि हमारी कमाई क्या हलाल की है या नहीं है, क्या हम हराम से बचने की फिक्र कर रहे हैं या नहीं है, क्या हम कहीं हराम में मुलविस तो नहीं है। आदमी अपनी कमाई के बारे में गौर और फिक्र करे, सोचे कि वो उसकी खादगी हलाल है या हराम है। अगर हम हराम खाएं, हराम पिए, हमारा ओढ़ना बिछोना हराम का हो, हमारा लेन देन हराम का हो, हमारी तिजारत हराम की हो, सूदी कारोबार हो, ब्याज खाते हो, ब्याज देते हो, वड्डी का व्यापार करते हो, बहरहाल हर किस्म की हराम की कमाई आपकी दुआओं को कबूल होने में बहुत बड़ी रुकावट है। यही वजह है सही मुस्लिम हदीस नंबर 1015 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, युतीलु सफर, एक आदमी लंबे सफर पे निकल जाता है, अशआसा अखबरा, उसके कपड़े पड़ा गंदा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, और ऐसी हालत में वो दुआ करता है, या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। सफर में दुआ करता है, अल्लाह ताला से मांगता है। मेरे भाइयों, सफर एक ऐसा मरहला है जिसमें इंसान की दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के नबी ने जिन 3 खुश नसीबों की दुआ कबूल होने की बात की है, उस रिवायत में एक मुसाफिर भी है। मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला के नजदीक बहुत जल्द कबूल हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मुसाफिर का जिक्र अल्लाह के नबी ने हदीस मुबारका में किया है, उस मुसाफिर के बारे में फरमाते हैं कि वो उसके कपड़े पड़ा गंदा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो मुसाफिर है, सफर में है, अल्लाह ताला से सफर की हालत में दुआएं करता है, लेकिन मसला क्या है, रुकावट क्या है, वमतअमुहु हराम, उसका खाना हराम है, वमशरबुहु हराम, उसका पीना हराम है, वमलबसुहु हराम, वो जो पहना हुआ है अपने जिस्म पे कपड़े, वो कपड़े हराम के हैं, वगुज़िय बिल हराम, उसका सारा जिस्म हराम खादगी पर परवान चढ़ा है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो फिर ऐसी हालत में उसकी दुआ कहाँ कबूल होगी। मेरे भाइयों, ये सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें बात बताई गई कि एक मुसाफिर जिसकी दुआ अल्लाह ताला के नजदीक बहुत जल्द कबूल होती है, वैसे मुसाफिर की दुआ कबूल नहीं हो रही है। उस मुसाफिर की दुआ को कबूल होने में जो रुकावट है, वो रुकावट हराम कमाई है। हालांकि उसके पास कई असबाब हैं दुआ को कबूल करवाने के, मुसाफिर होने की हैसियत से वो अपनी दुआ बहुत जल्द कबूल करवा सकता था, लेकिन उसकी दुआ के कबूल होने में जो बहुत बड़ी रुकावट थी, वो उसकी हराम कमाई थी, वो उसका हराम का खाना था, जिसकी वजह से उसकी दुआ अल्लाह ताला के नजदीक कबूल नहीं हुई। तो आज भी हम दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगते हैं, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं, हमारी दुआएं पूरी नहीं हो रही हैं। क्यों? इस वजह से कि हमारी कमाई हराम की है, हमारा खाना पीना हराम का है, हमारा लेन देन हराम का है, हमारा कारोबार हराम का है। तो इसलिए मोहतरम हजरात, अपनी कमाई को हलाल बनाइए, हलाल खाइए, हलाल पीजिए, हलाल की आदत डालिए, हराम कारोबार से बचिए। हराम कारोबार से, हराम कमाई से जितना अपने दामन को बचा सकते हैं बचाइए। ये हराम कमाई
آپ کی عبادتوں کو قبول ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری کمائی حرام کی ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ دوسری وجہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ دعا نہیں کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، میری جو دعا اللہ تعالیٰ سے میں کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس مضبوطی کے ساتھ دعا کریں تو آپ کی دعا میں دم ہوگا، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الترمذی کی روایت میں فرمایا، حدیث نمبر 3470 پر 9 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ، تم اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو۔ کیسے؟ وانتم موقنون بالاجابہ، اس حالت میں کہ تم دعا قبول ہونے پر پورا یقین رکھتے ہو، یقین کے ساتھ دعا کرو، اس وجہ سے کہ فإن اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو جس کا دل حاضر نہیں ہے، جو بے پرواہ ہو کر غفلت میں، سستی میں دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین اور ناظرات، اس حدیث مبارکہ میں ہماری دعا قبول نہیں ہونے کی دوسری رکاوٹ بیان کی گئی ہے، اور وہ رکاوٹ کیا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ایک سوئی کے ساتھ، دل لگا کر کے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم دعا کرتے ہوئے ہمارا دل ایک طرف ہوتا ہے، ہماری زبان ایک طرف ہوتی ہے، ہم زبان سے کیا مانگ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دعائیں کرتے ہوئے لوگ داڑھی میں کھجا رہے ہیں، بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں، اپنی ٹوپی کو، اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہے ہیں، یا ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک سوئی کے ساتھ دعا نہیں مانگتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ دل لگا کر کے دعا نہیں مانگتے ہیں۔ مسلمان اتنا نہیں سوچتا کہ میں جس رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہوں وہ رب میرے سامنے ہے، میں احکم الحاکمین رب العالمین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، کتنا ادب کے ساتھ، کتنا عاجزی کے ساتھ، کتنا انکساری کے ساتھ دعا مانگنا ہے۔ آدمی توجہ نہیں دیتا ہے، بے پرواہ ہو کر، لاپرواہی سے، سستی سے، غفلت میں، ایک دم بوجھ سے دعائیں مانگتا ہے۔ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ دعائیں قبول ہونے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم لاپرواہ ہو کر دعائیں مانگے، سستی سے دعائیں مانگے، غافل ہو کر دعائیں کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی دعا کریں آپ پورے دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ آپ دعائیں مانگے، یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے میں تیسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری دعائیں اگر گناہ کی یا رشتہ داری کی کاٹنے کی ہو تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہے کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7112، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم ولا قطيعة رحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کی دعا میں دو چیزیں نہ ہوں۔ پہلی چیز، وہ دعا کے اندر کسی گناہ کے کام کی دعا نہ مانگتا ہو، کوئی غلط کام کے لیے دعا نہ مانگے، کوئی گناہ کے کرنے کے لیے، گناہ کی آسانی کے لیے دعا نہ مانگے۔ اور دوسری چیز بتائی گئی ولا قطیعۃ رحم، رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا بھی نہ مانگے۔ دو انسانوں کے درمیان
दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान, दो रिश्तेदारों के दरमियान जुदाई की दुआ भी ना करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। इस हदीस मुबारका में हमारी दुआ कबूल नहीं होने की तीसरी बड़ी रुकावट बयान की गई है, और वो है कि हम जब दुआ के अंदर किसी गुनाह के करने के लिए दुआ मांगे तो वो दुआ कबूल नहीं होगी, और इसी तरह रिश्तेदारी को काटने की दुआ मांगे तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। किसी भी रिश्तेदारी को काटने के लिए अगर हम दुआ मांगे तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी है। आज देखें, लोग किसी से नफरत करते हैं, दुश्मनी करते हैं, तो अपनी दुआओं के अंदर रिश्तेदारों के बिछड़ने की दुआएं मांगते हैं, माँ बाप को औलाद से बिछड़ाने की कोशिशें करते हैं, शौहर को बीवी से अलग करने की दुआएं मांगते हैं, आपस में एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से अलग होने के लिए, उनके दरमियान नफरतें पालने के लिए, उनके दरमियान जुदाई डालने के लिए लोग दुआएं मांगते हैं। अजी बहुत गलत बात है। आप जब दुआ मांगे अल्लाह ताला से रिश्तेदारों की मिलनसारी के लिए, रिश्तेदारों के दरमियान मोहब्बत के लिए, रिश्तेदारों के दरमियान आपसी सुलह के लिए दुआ मांगे, ये अच्छी चीज है। आज हम लोग क्या करते हैं, किसी से कुछ अनबन हो गई तो फिर ऐसी सूरत में हम उनके हक में दुश्मनी की दुआएं करते हैं, हम उनके हक में नफरतों की दुआएं करने लगते हैं, हम उनके हक में बद्दुआएं देने लगते हैं, हम रिश्तेदारी को काटने की बातें करते हैं। मेरे भाइयों, रिश्तेदारों को जोड़ने की दुआ मांगो, तोड़ने की दुआ नहीं करना है। रिश्तेदारी को तोड़ने की दुआ, काटने की दुआ नहीं करना है, बल्कि बांटने की दुआ करने के बजाय आपको एक साथ जोड़े रखने की दुआ मांगना है। तो हमारी दुआओं के अंदर जब तक गुनाह और रिश्तेदारी को काटने की बात ना की जाए उस वक्त तक इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल हो सकती हैं। ये तीसरी बड़ी रुकावट है हमारी दुआएं कबूल नहीं होने में कि अगर कोई इंसान अल्लाह ताला से किसी गुनाह के काम के लिए या रिश्तेदारी को काटने की दुआएं मांगता है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान की दुआओं को कभी कबूल नहीं करते हैं। चौथी और आखिरी बड़ी रुकावट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है, हमारी दुआएं आज कबूल नहीं होती हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमने इस हदीस पर अमल करना छोड़ दिया है। हदीस क्या है? हदीस सुनन अत-तिरमिज़ी की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, लतअमुरुन्न बिल मारूफ, तुम लोग जरूर भी जरूर भलाई का हुक्म लोगों को दो, वला तनहउन्न अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोको, औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिन, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला अपनी जानिब से तुम पर कोई अजाब, कोई सजा उतारेगा। सुम्मा तदऊनहु, फिर तुम अल्लाह ताला से दुआएं मांगोगे, फला युस्तजाबु लकुम, तो फिर तुम्हारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस में हमारी दुआएं कबूल नहीं होने की बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ी वजह बताई गई है। यह हदीस सुनन अत-तिरमिज़ी की है, हदीस नंबर 2160 पर 9 है। इस हदीस में आप गौर करें, अल्लाह के नबी ने हमारी दुआएं कबूल नहीं होने की एक वजह क्या बताई है कि जब एक मुसलमान लोगों को भलाई का हुक्म देना छोड़ देगा, बुराइयों से रोकना छोड़ देगा, तो फिर ऐसी हालत में वो जो दुआएं मांगेगा अल्लाह ताला के नजदीक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। मोहतरम नाज़रीन और नाज़िरात, इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे आपके सामने बयान करने के लिए जो उन्वान शुरू में दिया गया था वो उन्वान इसी मुनासबत से था कि मौजूदा हालात में मुसलमानों को क्या काम करना चाहिए। तो इस
उन्वान की बहुत बड़ी बात इस हदीस के अंदर बताई गई है, और वो ये है कि आज मुसलमानों पे जगह जगह जुल्म हो रहा है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को उनकी दीन की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। इसके बावजूद भी आज अल्लाह ताला की मदद के हम मुस्तहिक नहीं बन रहे हैं, कबूल नहीं हो रही है। तो उसकी वजह क्या है कि हमने एक इस फरीजे को अदा करने में बहुत गफलत बरती है। आज देखें, मुसलमानों पे जहां जहां जुल्म और सितम हो रहा है, अल्लाह ताला से मदद मांगने के लिए हम कितनी दुआएं मांग रहे हैं, हम अल्लाह ताला से रो रो कर मांग रहे हैं। हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान मक्के में, मदीने में जगह जगह मुसलमानों के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, फिर भी हमारी बात दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, या अक्सरियत की अक्सर दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। तो उसकी वजह क्या है कि हमने दीन को लोगों को बताना छोड़ दिया है, हमने नेकी का हुक्म दूसरों को बोलना छोड़ दिया है। हमारे सामने कोई गलत कर रहा है, हम उसको नहीं रोकते हैं, हमारे सामने कोई गुनाह का काम करता है, हम उसको नहीं समझाते हैं, हम किसी को नसीहत की बात, दीन की बात खैर खाही के तौर पे नहीं बताते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं होने की। आप जरा हम में से हर आदमी जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, हम में से हर आदमी अपने बारे में जायजा ले, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह क्या ये नहीं है कि मेरी आंखों के सामने अगर कोई गलत काम करता है तो क्या उस गलत काम पर मैं उसको रोक रहा हूं? क्या कोई नमाज पढ़े बगैर टाइम वेस्ट कर रहा है, नमाज पढ़े बगैर सो रहा है, नमाज से गाफिल है, बेनमाजी है, तो क्या मैं अपने घर के, अपने खानदान के किसी आदमी को समझा रहा हूं? अगर कोई मेरे सामने कोई बुरी हरकत करता है, कोई गुनाह का काम करता है, कोई सूद में मुलविस है, कोई हराम की कमाई कमा रहा है, कोई वड्डी ब्याज का कारोबार कर रहा है, तो क्या ऐसी सूरत में हम लोगों को समझा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं? ये कितनी गलत बात है। आज हर एक इंसान ये चाहता है कि वो अपनी हद तक बच जाए, वो अपनी हद तक अमल कर ले तो ठीक है, दूसरों को नहीं बोलने का, दूसरों को नहीं बताने का। लोग समझते हैं कि दूसरों को रोक कर, दूसरों को बोलकर हम खुद क्यों बुरे हो जाएं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि आपके पास जितना इल्म है उस इल्म के मुताबिक आप लोगों को बुराइयों से रोकें, अच्छाई का हुक्म दें। अगर आपको कोई मसला समझ में नहीं आ रहा है, अहले इल्म की तरफ, उलमा की तरफ रुजू हो। लेकिन ये फरीजा अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का हर एक मुसलमान का है, ये एक हक है, एक जिम्मेदारी है जो हर एक मुसलमान को अदा करना चाहिए। नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है, ये सिर्फ इमामों का काम नहीं है। हाँ, उनकी भी ये जिम्मेदारी है इमाम होने के नाते, आलिम होने के नाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है, नहीं जी। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 में फरमाया, 110 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। कैसी, किस वजह से बेहतरीन है? उखरिजत लिन्नास, तुम निकाली गई हो, तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई का हुक्म दोगे, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकोगे। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की 110वीं आयत में उम्मत मुस्लिमा को, पूरी मुस्लिम कौम को मुखातब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा के हर एक फर्द की, उम्मत मुस्लिमा के हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दे। मेरे भाइयों, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अच्छाई का हुक्म दे, नेकी की बात बताएं, नसीहत करें, और अगर हमारे सामने कोई गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको उस गलती से बचाएं, उसको उस गलती के बारे में रुकाएं, उसको समझाएं, और अपने मुसलमान भाइयों को
बल्कि पूरे इंसानों को दीन की सही तबलीग, दीन की सही दावत उन तक पहुंचाना यह हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। हमारी दुआएं आखिर कबूल क्यों नहीं होती हैं? हमारी दुआएं कबूल नहीं होने में ये बहुत बड़ी रुकावट है कि हम मुसलमानों ने लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकने का ये जो फरीजा हमारे ऊपर आयद था, हमने इस फरीजे से मुंह फेर लिया है। हम गाफिल हैं, हम अपनी जिंदगी में मगन हैं। हर आदमी ये चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में अपने हद तक कुछ नेकियां करने काफी है। दूसरों को बोलना, दूसरों को बताना, दूसरों को समझाना, दूसरों को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र करना, इस फरीजे से, इस जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं। आज जरूरत है इस बात की कि हम में का हर आदमी, हर एक मुसलमान तमाम इंसानों को नारे जहन्नम से बचाने के लिए दीन की सही तबलीग उन तक पहुंचाए, दीन का पैगाम उनके दरमियान आम करे। और ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। आपके पास कुरान और हदीस का जितना सही इल्म है, उस इल्म को अपने घर वालों के दरमियान, अपने रिश्तेदारों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने जान पहचान में, बल्कि पूरे इंसानों के दरमियान जिन जिन से आपका ताल्लुक है या आपका ताल्लुक हो सकता है, उन तक दीन की दावत को पहुंचाना, उनको नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी नेकी यही है कि आप एक अल्लाह की तरफ, तौहीद की तरफ दावत देना दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। शिरक से रोकना, शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, तो शिरक से रोकना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तौहीद की नसीहत देना, तौहीद को बताना और शिरक से रोकना ये आप में से हर एक की जिम्मेदारी है। इसी तरह हर एक अच्छाई के बारे में दूसरों को बताना और हर एक बुराई के बारे में दूसरों को आगाह करके, दूसरों को खबरदार करके उस बुराई से रोकना, उस गुनाह से रोकना, ये हर एक की जिम्मेदारी है। खुलासा यह है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं, इस बारे में मैंने आपके सामने पूरी 4 बातें मैंने आपके सामने बयान की है। एक और मर्तबा इन 4 बातों को आपके सामने दोहरा देता हूं। हमारी दुआएं अगर अल्लाह ताला के नजदीक कबूल नहीं होती हैं तो उसकी 4 बड़ी रुकावटें हैं। पहली रुकावट यह है कि हराम खाने की वजह से, हराम कमाई की वजह से हमारी दुआएं अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं होंगी। दूसरी रुकावट, अगर हम यकीन के साथ दुआ नहीं करेंगे, सुस्ती से, लापरवाही से दुआएं करेंगे, अल्लाह ऐसे बंदे की दुआओं को भी कबूल नहीं करते हैं। तीसरी रुकावट, गुनाह और रिश्तेदारी को काटने की दुआएं अगर मांगेंगे तो ऐसे इंसान की दुआ को अल्लाह ताला कबूल नहीं करते हैं। चौथी बड़ी रुकावट, अगर हम लोगों को नेकी का हुक्म देना छोड़ देंगे, बुराइयों से रोकना छोड़ देंगे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करते हैं। ये 4 बड़ी रुकावटें हैं जो हमारी दुआओं के कबूल होने में माने हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जब दुआ मांगे तो इन रुकावटों को दूर करें और दुआ कबूल होने के जो शराइत हैं उन शर्तों पर मुकम्मल उतरते हुए अपनी दुआओं को कबूल होने के काबिल बनाए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस बैठक को कबूल फरमाए। हम में से जिन्होंने इन बातों को सुना है उन बातों पर खुद भी अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं में अब तक जो कमी रह गई है उस कमी को अपने फजल से पूरा फरमा कर हमारी दुआओं को काबिल कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम में से जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ बारे इलाह, हम में से जिसकी जिंदगी में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, औलाद के बिगड़ेपन की वजह से जो माँ बाप परेशान है, अल्लाह ताला उनकी औलाद को मुतीअ फरमा बरदार बनाए। हम में से जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जो जिंदा है अल्लाह ताला उनको ईमान पर साबित क़दमी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीक, नफ़अल्लाहु बिकुमुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। मेरे मोहतरम भाइयों, अब तक हम शेख हिदायतुल्लाह उमरी हाफिज़हुल्लाह से सुन रहे थे हमारी दुआ आखिर कबूल क्यों नहीं होती।
الحمدللہ شیخ محترم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل خطاب فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں اور اہل عیال میں برکتوں سے نوازے. آمین یا رب العالمین. شیخ سوال جواب لیں گے. شیخ اگر ٹاپک کے حوالے سے کوئی جی ضروری سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، موضوع کی مناسبت سے کریں، ادھر سے ادھر سے نہ. جی جزاک اللہ خیر. اگر سے کسی بھائی کا سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا. یونس بھائی اپنے پاس سے انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا کہنا یہ ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، جو حق کو چلتے ہیں، جو صحیح بولتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، پھر بھی وہ تھوڑے دن ہی چلتے ہیں. تھوڑے لوگ اللہ آزماتے ہیں کیا انسان کو، پھر بھی تھوڑے دن چلتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں، اس ٹائم پھر وہ گمراہ ہے انسان. اس کے بارے میں ذرا وضاحت کرے تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے دین پر پابندی کے ساتھ چند دن تک عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں یا پھر دین سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ نصیحت کرنے کے لیے بتائے ہیں. جی بھائی صاحب دیکھیے، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد بغیر آزمائش کے وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم. کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تم پر ویسی حالتیں نہیں آئیں گی جیسی حالتیں اس سے پہلی والی قوموں پر آئی؟ یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان، آزمائش ضرور ہوگی. اس آزمائش کے دوران یا آزمائش کے بعد بھی ہمیں دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے. لوگ آج طرح کی گھر میں کیا مصیبت آئی، کیا پریشانی آئی، لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، شرک کے راستوں پر، بدعتوں کے راستے پر چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں کس کو نہیں آتی ہیں؟ عام انسان تو عام انسان ہے. پیغمبروں تک بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائے گئے ہیں، پیغمبروں اور رسولوں کو بھی جب تکلیفیں آئی ہیں تو ہم تو عام انسان ہیں، ہمارے اوپر بھی تکلیفیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں. اس کے باوجود بھی دین پر ڈٹ کر رہنا، جم کر رہنا بہت ضروری ہے. میں اس بارے میں ایک بہت ضروری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کو ہوگی، لوگوں میں سب سے زیادہ آفتیں کس پہ آئیں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں کو آتی ہیں، اس کے بعد جو اپنے ایمان میں جتنا پیغمبروں سے قریب ہوگا اس کی زندگی میں اتنا آزمائشیں آئیں گی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائشیں آنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ایمان کی صلابت ہوتی ہے. یعنی جو ایمان میں جس قدر پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی آزماتے ہیں. اب کیوں آزماتے ہیں؟ اس کے زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے، جو صغیرہ کبیرہ ہے، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان گناہوں کی معافی کے لیے، یا پھر اس آدمی کو اللہ تعالیٰ
जन्नत में बुलंद दर्जात देने के लिए दुनिया में आजमाते हैं। जैसा कि पैगंबरों को आजमाइशें इसलिए आई ताकि उनका मकाम आला से आला हो। तो अगर कोई इंसान नेक है, नमाजी है, दीनदार है, फिर भी उसकी जिंदगी में आजमाइशें आ रही है, तो उसे परेशानियों में गमजदा नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला इन परेशानियों की वजह से उसके गुनाहों को माफ करना चाहते हैं या फिर उसको उसके दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं। हाँ, इसी से जुड़ी हुई एक और जरूरी बात यह है कि अगर कोई मुसलमान बेदीन है, बेनमाजी है, अल्लाह से दूर है और उसके ऊपर कोई परेशानियां मुसीबतें आ रही है, तो फिर वो एक वार्निंग है, उसको आगाह करने के लिए ऐसे मुसलमान को समझ जाना चाहिए, गुनाहों की जिंदगी से दूर होना चाहिए कि ये मुसीबतें, ये परेशानियां इसी वजह से आई हैं, ताकि वो मुसलमान अल्लाह ताला का डर, अल्लाह का खौफ अपने दिल में लाए, अपनी गुनाहों की जिंदगी से दूर हो। इस वजह से ये आफतें, परेशानियां भी आती हैं। ऐसी हालत में हमें सच्ची तौबा करके अल्लाह ताला से करीब होने की कोशिश करना चाहिए। बहरहाल आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां ईमान लाने के बाद हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा हो सकती हैं। ऐसी हालतों में भी सब्र करना, साबित कदमी रहना, यही पैगंबरों का काम रहा है। सहाबा कराम ने भी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को झेलने के बावजूद भी अपने ईमान को नहीं खोया। तो हमें भी चाहिए कि दीन पर हमेशा साबित कदम रहें। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ऐसे ईमान से जिंदगी गुजारें, ईमान मुहकम, ईमान कामिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ के ऐसी जिंदगी गुजारे कि इसी इस्लाम और ईमान पे हमारी मौत हो। तो इसलिए ऐसी आजमाइशों में घबराने के बजाय हमें दीन पर और डटकर साबित कदम रहना चाहिए। ठीक है जी, आगे और बारकल्लाहु फीक शेख। मुबारक भाई, अपने पास अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारकल्लाह फीकुम शेख, माशाअल्लाह बहुत अच्छा दर्स था। अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे। शेख, मेरा सवाल एक है आमीन। कि जो लोग शिर्क के साथ इंतकाल कर जाते हैं, यानी जिंदगी में शिर्क करते करते और इंतकाल कर जाते हैं, क्या उनके लिए दुआ करना जायज है शेख? एक मिनट सब्र करिए मेरे भी, शेख आ जाएंगे इंशाल्लाह। शायद शेख को फोन आ गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख ऑडियो वीडियो बंद है शेख आपका। नेटवर्क प्रॉब्लम है बोल के शेख पर्सनल में मैसेज रख रहे हैं। अबू मोहम्मद, देखो अगर मजलिस खत्म करनी है तो। जी, क्या खत्म करा लें? हाँ देखो खत्म करा लो शेख अबू मोहम्मद। जी, शेख को क्या कि शेख है, अल्लाह रहम करे, खुला तो ठीक है।
चल गए फिर ठीक चल है गए खत्म करा लो इंशाल्लाह। मुबारक भाई, और उसी तरह शमशाद अकबर भाई हैंड राइज करें इंशाल्लाह। अगले दर्स में आपके सवाल इंशाल्लाह पूछिए, मौका दिया जाएगा आपको। तो इसी पर इत्तेफाक करते हैं, इस दर्स को हम ख़त्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ हमकिनार किया है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र के बाद शेख मोहतरम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उसी तरह जो भाई जूम पर मौजूद हैं और उसी तरह यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, उन भाइयों का भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और हस्बे मामूल दो ऐलानात के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। पहला ऐलान ये है कि AIGC टीम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सब भी इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, AIGC के प्लेटफॉर्म से जो भी दुरूस चलते हैं वो वहाँ पर अपलोड होकर रहते हैं, जब भी चाहें तो आप देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा ऐलान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह AIGC के प्लेटफॉर्म से हफ्ते में 2 उर्दू दर्स और महीने में 2 तेलुगु दर्स चलते हैं। मैसेजेस के ज़रिए आप तक खबर पहुँचा दी जाएगी। तमाम अहबाब इसमें ज़रूर शिरकत करें और अपने दोस्त अहबाब को भी इसमें लाने की कोशिश करें। इन्हीं कुछ दुआई कलिमात के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिर में सब कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।